Welcome students. Today we are going to see our first chapter of standard 6 of history subject. Okay? I hope you are ready with your history textbook in your hand. Okay? And have a pencil in your hand. Let's see what is the name of the chapter. The Indian subcontinent and history. What we are going to see in this lesson? Indian subcontinent and history. You all of you know what is continent. मराठी में क्या बोलते हैं continent को? खंड. Okay. And what do you mean by subcontinent? Subcontinent means in Hindi we say भारतीय उपमहाद्वीप and in Marathi is उपखंड. Okay. What do you mean by continent is a you understand. Let us revise 7 continents. I know you all know, but we will revise again. Asia, Africa, Antarctica, Europe, North America, South America and Australia. Okay, ये हो गई कॉन्टिनेंट के बारे में बात. कितने कॉन्टिनेंट्स हैं? 7. हमने उसको रिवाइज भी कर लिया. अब हम देखेंगे व्हाट डू यू मीन बाय सब कॉन्टिनेंट. सब कॉन्टिनेंट क्यों बोला जाता है और सब कॉन्टिनेंट मतलब क्या होता है? अ लार्ज लैंडमास. ओके, अ लार्ज लैंडमास दैट फॉर्म्स पार्ट ऑफ अ कॉन्टिनेंट. लार्ज लैंडमास जो कि एक पार्ट होती है ऑफ अ कॉन्टिनेंट, स्पेशली द पार्ट ऑफ एशिया एंड इंक्लूड्स 7 कंट्रीज. एशिया जो कॉन्टिनेंट है उसमें 7 कंट्रीज इंक्लूड कंसिस्ट ऑफ 7 कंट्रीज. व्हिच आर दिस कंट्रीज? इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका, भूटान एंड द मालदीव्स. ओके, these 7 countries consists in Indian subcontinent. I hope you all of you understood this topic of what is subcontinent. First हमने देखा कॉन्टिनेंट्स क्या होते हैं, कॉन्टिनेंट्स को क्या बोला जाता है, सब कॉन्टिनेंट को क्या बोला जाता है, और 7 कॉन्टिनेंट्स के नेम हमने देखे और व्हाट डू यू मीन बाय सब कॉन्टिनेंट वो भी हमने देखा और समझा. उसमें 7 कंट्रीज आते हैं, वो कंट्रीज के नेम्स भी हमने देखे. ओके, नाउ वी विल start with our first lesson, that is the Indian subcontinent and history, how they are interrelated. Okay, in this chapter the chapter is divided into 3 parts. Let's see which are they. For 1.1 geographical conditions and the course of history. 1.2 geographical features of India and 1.3 the Indian subcontinent. Okay, first of all I will read first paragraph and I will explain you by one. Let's see in your textbook. 1.1 geographical conditions and history. In the 5th standard we saw at some length that there is a close relationship between man and his एनवायरमेंट. 5th स्टैंडर्ड की हिस्ट्री में हमने देखा कि बहुत ही क्लोज रिलेशनशिप है मैन और एनवायरमेंट के बीच. इसीलिए हम कहते हैं कि एनवायरमेंट को हमने खराब नहीं करना चाहिए, पोल्यूट नहीं करना चाहिए, बिकॉज आवर ऑल नीड्स डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंड्स ऑन एनवायरमेंट. ओके, वी सॉ हाउ द चेंजेस इन द लाइफस्टाइल of the early man and his technology were related to the changes in his surrounding. हमने ये भी देखा था लास्ट ईयर कि लाइफस्टाइल और अर्ली मैन और उसकी टेक्नोलॉजी कैसे रिलेटेड है अपने चेंजेस और सराउंडिंग. अगर उनकी सराउंडिंग चेंज होती है उनका लाइफस्टाइल भी चेंज होता है, बराबर. वो हम देखेंगे आगे, जैसे मैं आपको आगे जाएंगे हम लोग एक्सप्लेन करेंगे. We also reviewed the history of human civilization from the Stone Age to the agricultural civilization that flourished on the banks of rivers. हमने ये भी देखा कि अर्ली मैन ह्यूमन सिविलाइजेशन जो
था वो पहले कहाँ पर फ्लरिश हुआ था? यू ऑल नो बिकॉज यू आर वेरी क्लेवर स्टूडेंट्स दैट इट वॉज फ्लरिश्ड ऑन द बैंक ऑफ रिवर. ओके, I hope you understood the first paragraph. Now see the second paragraph. History is a coherent account of significant past events in the progress of human culture. What is history? History is a coherent account of a significant past event in the progress of human culture. इतिहास क्या है? इतिहास क्या दर्शाता है? ह्यूमन की डेवलपमेंट वक्त के साथ साथ कैसे हुई और पास्ट इवेंट के बारे में बहुत ही अच्छी तरह से जांच पड़ताल कर कर वो चीज़ सही मायने में लिखी जाती है, उसे हम हिस्ट्री कहते हैं. ओके, व्हाट आर द 4 मेजर पिलर्स ऑन विच हिस्ट्री इज रिटन? ओके, टाइम, प्लेस, सोसाइटी एंड इंडिविजुअल्स. What are the 4 major pillars? Time, place, society and individuals are the 4 major pillars of history. You can underline first line of second paragraph, that is what is history. Okay, and also you can underline 4 major pillars on which history is dependent. We cannot write history without them. These 4 major pillars are very important in writing of history. Without this, we can't write. Of these 4 components, place is related to geography or geographical condition. ये 4 चीजों में से place ये कैसे रिलेट करती है? ज्योग्राफी से. बराबर, ज्योग्राफी और geographical conditions ये जो चीजें होती हैं इसके ऊपर भी हिस्ट्री लिखी जाती है. ये बहुत मायने रखती है. हिस्ट्री हम लिख रहे हैं, टाइम क्यों मायने रखता है? क्योंकि वो हमें वक्त बताता है कि ये कौन से पीरियड की बात कर रहे हैं हम. ओके, प्लेस क्यों? कौन सी जगह पर हुई है, वो ये घटना कौन सी जगह पर हुई है. सोसाइटी मतलब वहाँ के लोग, उनका जो रहन सहन था वो कैसा था उस दौरान. एंड ऑल्सो एन इंडिविजुअल मतलब किसके बारे में हम लिख रहे हैं, वहाँ के जो पीपल्स है उनके बारे में, और अबाउट whom we are writing history. That's why the 4th major pillar is individuals. And place is related to a geography or geographical condition. In this sense, history and geography are inseparable. Underline this. इस रिलेटेड हम समझ सकते हैं कि हिस्ट्री और ज्योग्राफी दे आर इंटर रिलेटेड, दे कांट बी सेपरेटेड. क्यों? क्योंकि हिस्ट्री का जो बेस है, हिस्ट्री जब लिखा जाता है वो काय के आधार पर लिखा जाता है? 4 मेजर पिलर्स. उसमें का जो एक पिलर है दैट इज प्लेस, और प्लेस कैसे रिलेटेड है? ज्योग्राफी से. इसलिए हम लोग ये कह सकते हैं और समझ सकते हैं कि ज्योग्राफी एंड हिस्ट्री आर इनसेपरेबल. हिस्ट्री इज इन्फ्लुएंस्ड बाय ज्योग्राफिकल कंडीशंस इन मैनी वेज. हिस्ट्री ये ज्योग्राफिकल कंडीशंस से बहुत इन्फ्लुएंस होती है. इन्फ्लुएंस होना मतलब बहुत मायने रखती है उस चीज़ से. बहुत अच्छे से हम लोग हिस्ट्री समझा सकते हैं, बता सकते हैं, इसलिए ऐसे कहा गया है. बहुत सारे तरीके हैं जिससे कि हम इसको इंटर रिलेटेड बोल सकते हैं. नाउ हियर यू कैन सी इन योर टेक्स्ट बुक टाइप्स ऑफ हाउसेस. इन योर सराउंडिंग ऑल्सो you may have seen types of houses. Even if you have visited different states and different regions of our India, you will able to see different lifestyle of the people. Okay, our diet, clothing, housing, occupation, in fact all human life in any region depends to a large extent on its geographical characteristics. जो हमारे geographical characteristics है, मतलब क्या, वहाँ का हवामान कैसा है, वहाँ की जगह कैसी है, प्लेस कैसी है, वहाँ पर चीज़ें अवेलेबल कैसे हैं, उसके ऊपर बहुत सारी चीज़ें मायने रखती है. जैसे कि डाइट. डाइट मतलब खान पान. वो जगह पर जो चीज़ ज़्यादा अवेलेबल होती है वो लोग वही अपना डाइट मानते हैं या वो डाइट वो लोग यूज़ करते हैं.